video lecture, I'm going to explain how buffer resist pH. After watching this video, students can able to understand the buffer action. This video will be helpful for BSc, MSc and VS student as well as we know that there are two important type of buffer solution. The first one is acetic buffer and second one is basic buffer. In this video I only explain how acetic buffer resist pH by the addition of small amount of an acid or base in a given acetic buffer. So for this purpose we explain this phenomenon by an example and also mathematically prove how buffer solution resist pH. Let's suppose आपके पास एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट का बफर सॉल्यूशन है CH3 एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट बफर है, दैट इज एसिटिक बफर. When you add any small amount of acid or base in this type of buffer, how it resists pH? As we know that acetic acid dissociate into its respective ion, hydrogen ion and acetate ion. Similarly, sodium acetate dissociate into sodium ion plus acetate ion. When you add small amount of an acid or base in a given buffer solution, then how the mechanism will occur, how it resists pH. अगर आप इस केस में small amount acid की add करें, for example let's suppose we add a small amount of HCl acid, then in reaction medium the concentration of hydrogen ion will be increased. These hydrogen ion pick the acetate ion and form acetic acid. As we know that acetic acid is weak electrolyte or weak acid, it dissociate into its sign CH3CO negative plus H positive, but the dissociation will be less because it is weak electrolyte and weak acid, so rate of forward reaction will be 100%, but rate of reverse reaction will be somewhat in less amount. So in this way the increase in concentration of hydrogen ion in a reaction medium will somewhat suppress. इसका मतलब ये हुआ कि आपके रिएक्शन मीडियम में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से रिएक्शन मीडियम में समवट कंट्रोल हो जाएगी. जब आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कंट्रोल हो जाएगी तो आपके पास पीएच रेजिस्ट हो जाएगी. सो दिस बफर रेजिस्ट द pH when small amount of acid and base will be added. और आपके पास रिएक्शन मीडियम में क्लोराइड आयन जो प्रोड्यूस होंगे आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ HCl, it react with sodium ion and form sodium acetate. In this way, sodium chloride. In this way, buffer resists the pH. Now we mathematically prove this statement कि either the concentration, we say that concentration of hydrogen ion in a reaction medium will be controlled and pH not increase as the concentration of hydrogen ion increase in a reaction medium. The dissociation of the hydrogen ion will be less as compared to the hydrogen ion that are added into the
रिएक्शन मीडियम, तो इस चीज़ को आप मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हो। आप बता सकते हो कि अगर ये आपके पास रिएक्शन पीएच का इस तरह से मैकेनिज्म होता है बफर एक्शन का केमिकली, तो आप ये बता सकते हैं कि आपकी रिएक्शन मीडियम में पीएच भी कंट्रोल हो जाएगी। इफ वी रिजॉल्व अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अ स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू प्रूव दिस बफर एक्शन, देन वी कैन से सपोज our question statement is that if you have 1 liter buffer that's composition is 0 point, that is composed of 0.1 molar acetic acid and 0.1 molar sodium acetate having pH is equal to 4.74. What will be the pH of this solution by the addition of 0.02 molar HCl and NaOH। स्टेटमेंट से आपको इस तरह से कंफर्म हो रहा है कि आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन दैट इज कंपोज्ड ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट हैविंग कंसंट्रेशन 0.1 मोलर एंड पीएच विल बी इक्वल टू 4.74। अगर आप इस बफर में स्मॉल अमाउंट आप ऐड कर देते हो 0.02 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड की और HCl की, तो व्हाट विल बी द इट्स न्यू पीएच की, इसकी न्यू पीएच क्या होगी। इस न्यूमेरिकल के आपके पास 2 क्वेश्चन है। So first of all, we calculate the pH of a given buffer solution after the addition of small amount of sodium hydroxide in a reaction medium। अगर आप इस बफर एसिड की इस बफर सॉल्यूशन में इसके कंपोनेंट्स की डिसोसिएशन करो तो इट इज 100% कंफर्म कि आपके पास दिस बफर इज कंपोज्ड ऑफ CH3COH acetic acid that will be dissociate into CH3COO negative plus H positive, and similarly sodium acetate dissociate into sodium ion plus acetate ion। अब आप ये देखना चाहते हैं कि अगर आप इस बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर दें और बेस ऐड कर दें तो व्हाट विल बी द इट्स पीएच। इसकी पीएच 4.7 होगी या 4.7 से ग्रेटर होगी या इसकी पीएच में स्मॉल चेंज होगा, दैट्स विल बी नेग्लिजिबल। तो इस चीज़ को हमने मैथमेटिकली प्रूफ करना है और बफर एक्शन के थ्रू। अब आप देखो, अगर आप ऐड करते हो इसमें 0.02 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की एडिशन से आपके पास होगा क्या कि आपके पास हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन इन द रिएक्शन मीडियम इंक्रीज हो जाएगी। दीज हाइड्रोक्सल आयन इन अ रिएक्शन मीडियम पिक द हाइड्रोजन आयन and form water. So what dissociation, water is a weak electrolyte, so its dissociation will be less, mean के hydrogen water dissociate into H ion and OH ion in less amount। तो rate of आपके पास जो आपकी
रिएक्शन है इसका फॉरवर्ड, इसका जो डायरेक्शन का ये जो रिवर्स रिएक्शन है ये ज़्यादा होगा और ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन लेस होगा। या इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि जब ये सोडियम, ये हाइड्रोक्साइड OH आयन H आयन से रिएक्ट करेगा तो आपके पास वाटर बनेगा। तो वाटर की फॉर्मेशन का रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगा बट डिसोसिएशन का कम होगा, क्योंकि वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन दिस वे बाय द एडिशन ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल आयन the pH of the solution is somewhat controlled। और ये आपके पास सोडियम आयन एसीटेट आयन से रिएक्ट करके सोडियम एसीटेट बना देंगे। अब हम यही देखना चाहते हैं कि अगर आप इसको मैथमेटिकली प्रूफ करो तो आप कैसे प्रूफ करोगे, कैसे बफर की पीएच निकालोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि जब आपने एडिशन की हाइड्रोक्सिल आयन की तो उस केस में हुआ कि ये कि आपके पास रिएक्शन मीडियम में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन द सॉल्ट फॉर्मेशन विल बी इंक्रीज। इट इज़ 100% कन्फर्म कि आपके पास जो सॉल्ट होगा उसकी कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और ये हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्शन मीडियम में से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से आपके पास इस एसीटेट आयन की फॉर्मेशन की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। एज अ रिजल्ट जब इसकी कंसंट्रेशन आपके पास क्या हो जानी है, लो हो जानी है, इट्स मीन कि आपके पास 0.1 मोलर आपके पास एसिटिक एसिड ऑब्टेन नहीं होगा, बल्कि आप जब एडिशन करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। कितना डिक्रीज होगी? 0.02 मोलर। मीन कि इसमें नंबर ऑफ मिलीमोल इसके रिएक्शन से जब इसके मिलीमोल आप निकालेंगे, इसके मिलीमोल में से इसके मिलीमोल, तो वो आपकी न्यू कंसंट्रेशन होगी एसिटिक एसिड की। और एडिशन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एडिशन से आपके पास सोडियम साल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। सोडियम साल्ट की फॉर्मेशन होने की वजह से आपकी कंसंट्रेशन इस केस में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सोडियम एसीटेट विल बी फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आप रिएक्शन मीडियम में सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दोगे तो आपके पास OH लेवल इंक्रीज हो जाएगा। OH लेवल इंक्रीज होने की वजह से आपके पास एसीटेट आयन की फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी। सो वी कैन से द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट विल बी ऑब्टेन बाय द एडिशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। So the resulted concentration of acetic acid and acetate ion will be sodium acetate will be equal to, first of all we have to find the moles of the acetic acid by using molarity. Molarity is equal to moles per liter, and moles is equal to number of moles is equal to molarity multiplied by liter. As you know that 0.1 molar, to it's obviously a 100% sure that its solution, the volume of solution is 1 liter. So 0.1 multiplied by 1 is equal to 0.1 moles. And similarly the moles of number of moles of salt, that is sodium acetate, is equal to molarity of sodium acetate multiplied by liter of buffer solution, volume of buffer solution, that will be equal to 1 liter. That will be equal to 0.1 multiplied by 1, that will be equal to 0.1 moles. Similarly you have to find the moles of sodium hydroxide added, that is added in a reaction medium. It is also 0.2 molar and the solution will be a form in a liter. अगर आपको पास वॉल्यूम अवेलेबल ना हो, आपको प्रोवाइड ना किया गया हो, तो फिर आप उसको 1 लीटर ही अंडरस्टूड करते हैं, बिकॉज मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो ये भी आपके पास लीटर हो तो आप अब क्या करोगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ added sodium hydroxide will be equal to 0.02 multiplied by 1 volume liter, 0.02 moles. 0.02 moles. So we have to find the number of new concentration of acetic acid and sodium acetate. So concentration of acetic acid, moles of acetic acid. First of all we have to find moles of acetic acid, number of mole of
acetic acid nu that is obtained after the addition of sodium hydroxide. Acetic acid will be represented as HAC, or we simply say acetic acid. That will be equal to, by the addition of sodium hydroxide, it is clear cut information, the concentration of proton will be decreased. So we can say the concentration of acetic acid will be decreased, the formation of concentration of acetic acid will be decreased. So that will be equal to 0.1 minus 0.02. अगर आप इसको माइनस करो तो आपके पास आंसर आएगा 0.08 मोल्स. अगर आप इसकी मोलैरिटी फाइंड करें तो नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व पर लीटर, तो ये आपके पास मोलैरिटी कितनी आ जाएगी न्यू, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.08 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा. इसी तरह से अगर आप कंसंट्रेशन एसीटेट सोडियम एसीटेट आयन की भी एसीटेट आयन की करें, सोडियम सॉल्ट की नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें आफ्टर द एडिशन ऑफ 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, that will be equal to 0.1 plus 0.02, that will be equal to 0.12 moles. इसको अगर आप डिसॉल्व कर दो लीटर में, then it will be molarity, क्योंकि because we have to use the concentration, so the new molarity of the salt will be 0.12 molar. By using equation in order to find the buffer solution, that will be equal to pH plus pKa. pH is equal to pKa plus log conjugate base, the concentration of conjugate base, that will be represented by 1A1 minus and the concentration of एसिड इन केस ऑफ एसिटिक बफर. तो आपके पास कॉन्जुगेट बेस कौन सी है जो आपके पास सॉल्ट से ऑब्टेन होती है, दैट इज एसीटेट आयन. सो द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन विल बी इक्वल टू 0.12 मोलर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू 0.08 मोलर. इफ यू डिवाइड एंड द pKa वैल्यू ऑफ द एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 4.74. So by resolving this equation, 4.74 plus log 0.1 over 0.2 log two divided 0.08, that will be equal to 1.5. That will be equal to 0.17609. That will be equal to 4.74 plus 0.17609. The new pH of the buffer solution will be equal to 4.9. अगर आप देखें आपकी पहले 4.74 pH थी और अब आपके पास 4.9 pH है, दैट इज नॉट टू मच इंक्रीज इन द pH by the addition of 0.02 molar sodium hydroxide in a buffer solution. So we can say buffer resists the pH of a given solution. अगर आप न्यूमेरिकल का दूसरा पोर्शन रिजॉल्व करो तो आपके पास क्लियर कट इंफॉर्मेशन होगी कि HCl के एडिशन से आपके पास क्या होगा. रिएक्शन मीडियम में आपके पास एसीटेट आयन, अब आपके पास सेकंड आपके पास क्या बनता है रिएक्शन मीडियम में, सोडियम प्लस CH3, सोडियम एसीटेट
CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। जब आप HCl ऐड करेंगे तो आपके पास रिएक्शन मीडियम में क्या इंक्रीज होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा कि इसमें से एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जब आपके एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन रिमूव होगी तो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगी, रिएक्शन मीडियम में इंक्रीज हो जाएगी और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिक्रीज हो जाएगी। सो वी कैन से दैट द न्यू मोल्स ऑफ द concentration of new moles of the acetic acid will be increased and the sodium acetate ion will be decreased। तो आप इस केस में दोबारा से मोल्स फाइंड करेंगे। एज वी नो दैट द मोल्स ऑफ द एसिटिक एसिड, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 0.1 moles in a given buffer solution and the number of moles of salt acetate ion that will be all equal to 0.1 mole। अगर आप न्यू मोल्स फाइंड करें आफ्टर द एडिशन ऑफ 0.02 मोलर एसिटिक एसिड, सो द नंबर ऑफ मोल ऑफ एडिशन ऑफ HCl, द नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड इंक्रीज। कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके मोल्स भी आपके पास क्या होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज इक्वल टू 0.1 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 0.12 मोल। सिमिलरली आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.08 sorry 0.1 minus 0.02 that will be equal to 0.08। सिमिलरली अब जब आप pH की इक्वेशन में इसको ऐड करेंगे, pH इज इक्वल टू pKa 4.74 log। अब आपको करना क्या होगा कि आपके पास एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन 0.12 है और एसिटिक एसिड सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपके पास 0.08 है। तो इस केस में आपके पास 0.08 क्योंकि कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन इक्वेशन में पहले पुट करेंगे और 0.12 अगर आप इसका आंसर देखें, इसकी pH देखें .74 प्लस log 0.66 that will be equal to pH, new pH is equal to 4.74 minus 1.76 that will be equal to 4.563 आंसर। अब देखो तो आपको पास इट इज़ 100% क्लियर कि आपके पास डिक्रीज इन pH भी आपके पास इतनी ज़्यादा नहीं हुई पॉइंट। अगर आप इसका डिफरेंस देखें तो आपके पास बहुत लेस डिफरेंस आता है। तो इट्स मीन कि बाय द एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड 0.02 मोलर बफर solution resist pH। This is all about how buffer solution, acidic buffer solution resist pH।